یہ ہے وقت میڈیا۔ اس خوبصورت مشاعرے کے نظامت ندیم فاروق صاحب فرما رہے تھے، اور یہ ناانصافی ہوئی کہ انہیں نہ سنا جائے۔ ندیم فاروق صاحب عالمی سطح پر جہاں نظامت کے جوہر بکھیرتے ہیں، وہی شاعری کے حوالے سے بھی آپ کی شخصیت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو میں بڑے ہی ادب کے ساتھ زیادہ نہ بولتے صرف دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بہت جدید ہے لہجہ ندیم فاروق کا، بہت جدید ہے لہجہ ندیم فاروق کا، غزل میں جو نیا جادو اتار دیتے ہیں، یہ اپنے علم و فکر کی بلندیاں دے کر، یہ اپنے علم و ہنر کی بلندیاں دے کر ہر ایک لفظ کی قسمت سنوار دیتے۔ تو ایک بار زوردار تالیاں محترم ندیم فاروق صاحب۔ محترم دانش ایوبی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے لیے بہت سارے لفظ خرچ کیے۔ ایک جملے سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ ایک جملہ انہوں نے بولا تھا کہ ندیم صاحب کو اگر نہیں سنا گیا تو یہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ میں کسی بھی مشاعرے میں، مشاعرہ ہندوستان میں ہو، ہندوستان سے باہر ہو، سامعین کی سماعتوں پر بار نہیں بننا چاہتا۔ اگر ایک شخص کو بھی یہ لگے گا کہ یار انہیں بھی سننا پڑے گا، تو پھر میں ایسی محفل میں ایک شعر تو کیا ایک مصرع سنانے کے لیے تیار نہیں۔ مگر کوئی ترس کھا کے مجھے نہ سنے، کیا کہنے سب محبت میں سن رہے ہیں اگر ہاں مطلب اللہ کا شکر ہے، یہ بھائی جتنے لوگ بچے ہیں سب محبت کے بچے ہیں۔ محبت کے لیے جان حاضر ہے میری جان، ہاں محبت کے لیے پہ جان حاضر۔ ارے آگے ہے میری جان۔ چلیے میں کچھ شعر پیش کروں۔ عرض کرتا ہوں کہ گفتگو کرنی ہے ہم دونوں کو صبح و شام کی۔ واہ 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 واہ، شفیق نئے شعر پڑھ رہا ہوں، تمہارا بھی کام ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ گفتگو کرنی ہے ہم دونوں کو صبح و شام کی، اے غزل آج کی یہ رات تیرے نام کی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے ندیم بھائی، واہ واہ ندیم بھائی، واہ واہ۔ گفتگو کرنی ہے ہم دونوں کو صبح و شام کی، اے غزل آج کی یہ رات تیرے نام کی۔ اب سنیے، بس غزل کہنا، غزل پڑھنا، غزل سے بات چیت، بس غزل کہنا، بس غزل کہنا، غزل پڑھنا، غزل سے بات چیت، ایک مدت سے یہی مصروفیت ہے شام کی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے ندیم بھائی، بہت بڑھیا بہت بڑھیا، واہ واہ واہ۔ بس غزل کہنا، غزل پڑھنا، غزل سے بات چیت، بس غزل کہنا، غزل پڑھنا، غزل سے بات چیت، واہ 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 واہ، ایک مدت سے یہی مصروفیت ہے شام کی، واہ واہ، ایک مدت سے یہی مصروفیت ہے شام کی۔ واہ واہ واہ۔ اب بلال شعر سننا، چند سکوں کے عوض، چند سکوں کے عوض جب بیچ دی دستار تک، کیا بات ہے، چند سکوں کے عوض جب بیچ دی دستار تک، پھر یہ سر بچ بھی گیا تو زندگی کس کام کی۔ واہ واہ واہ، کیا چند بات ہے، سکوں واہ کے واہ، عوض جب بیچ دی، جواب نہیں بھائی، جواب نہیں، واہ 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 ندیم بھائی، شکریہ بہت شکریہ۔ چند سکوں کے عوض جب بیچ دی دستار تک، چند سکوں کے عوض جب بیچ دی دستار تک، پھر یہ سر بچ بھی گیا تو زندگی کس کام کی۔ واہ واہ واہ، پھر یہ سر بچ بھی گیا تو زندگی کس کام کی۔ اب پھر یہ سر بچ بھی گیا، پھر یہ سر بچ بھی گیا تو زندگی کس کام کی۔ ایک شعر اور سن لیجئے، شورا اکرام سے بطور خاص توجہ کا طالب، ایک چائے
एक दो सिगरेट और कुछ रुपये। एक चाय एक दो सिगरेट और कुछ रुपये कौड़ियों के भाव में हमने गजल नीलाम की। वाह 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 वाह, एक दो सिगरेट और कुछ रुपये। एक चाय एक दो सिगरेट और कुछ रुपये। वाह 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 वाह, एक चाय एक दो सिगरेट और कुछ रुपये कौड़ियों के भाव में हमने गजल नीलाम की। कौड़ियों के भाव में हमने गजल नीलाम की। इश्क वालों की नजर में दर्द है सिनफे सुखन। इश्क वालों की नजर में दर्द है सिनफे सुखन। वो रुबाई मीर की हो या गजल खयाम की। वाह 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 इश्क वाह, वालों की नजर में दर्द है सिनफे सुखन। इश्क वालों की नजर में दर्द है सिनफे सुखन। वो रुबाई मीर की हो या गजल खयाम की। वो रुबाई मीर की हो या गजल खयाम की। मेरे भाई ये चार मिसरे आप संभालें इसे। ये चार मिसरे सुन लीजिए कि कितने जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं आप। वाह वाह, कितने जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं आप। कितने जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं आप। जैसे औलाद पालते हैं हम, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। वाह वाह वाह, क्या बात है नदीम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खूब बहुत खूब। तो इख्तिताम हो रहा है। वाह खुदाई से वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे औलाद पालते हैं हम, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। अब नहीं, ये नहीं आता तो इसके नाम से। अच्छा, ये बुके का एक कमाल है। देखिए, मैंने आज बहुत काम की बातें आपको बताई है। चलते चलते एक बात और बता देता हूँ। बुके के साथ फोटो खींचने का ये कमाल है कि इसमें ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि बुके लिया जा रहा है या दिया जा रहा है ना? ये बात सही है ना? हाँ। इतने जुमले उछालते हैं आप, जैसे औलाद पालते हैं हम, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। चार मिसरे और सुन लें। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं। शरफ भाई मेरी तरफ देखिए, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। और साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। मशवरा दे के छोड़ देते हैं। मशवरा दे के छोड़ देते हैं। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। वाह वाह वाह, अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। और हरफ आखिर के तौर पर यह आखिरी गजल और आपकी ज़हमत तमाम मतलब अर्ज करता हूं कि, और ये इस वक्त पढ़ने की गजल भी है, ये इश्क वालों के रत जगह का वक्त भी है और अल्लाह वालों के तहज्जुद का वक्त भी है ना? तो अब ये कबूलियत का वक्त है, इसलिए, और देखो मेरे साथ वो भी शुरू हो गया। तो ये गजल इस वक्त की है, मैं पढ़ दे रहे हूँ।
मतलब अर्ज करता हूं कि कुछ इस तरह से सुनिए, मतलब सुनिए, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। अब शेर सुनिएगा, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, बतौर खास शोरा इकराम तवज्जो का तालिब, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख। अब तो पक्का है, ये दिए ही जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इकबाल बुलंद रखे। बहुत शुक्रिया। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। और बिलाल कुछ बोले उससे पहले ही हर्फ आखिर के तौर पर आदमियत का निगहबान बनाने के लिए आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। अब शेर सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मेरा जैसा हकीर फकीर इंसान, सलीम भाई 3 दहाइयाँ हो गई मुशायरों में, ये शायद 32वां साल है मुशायरों में, और इन 3 दहाइयों में अल्लाह ने वो सब कुछ मुझे इस मुशायरे की बदौलत दिया है जो आदमी अपनी कामयाब जिंदगी के लिए चाहता है। मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ जो कुछ इंसान चाहता है, इज्जत दौलत शोहरत, जो कुछ चाहता है वो सब कुछ मुझे यहाँ से मिला है। अब शेर पढ़ता हूँ। मेरे खुदा माफ कीजिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। अब शेर सुने कि मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, मेरी किस्मत मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। डॉक्टर बशीर बद्र के ये 4 मिसरे, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी
मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। जश्न नूरपुर का ये तारीख साज मुशायरा आप सबको मुबारक। कन्वीनर मुशायरा जनाब नबील मिकरानी से गुजारिश कि इजहार, पहले तो सदर अली वकार से खुतबा सदारत के लिए गुजारिश, उसके बाद इजहार तशक्कुर के लिए नबील मिकरानी आएंगे। हाफिज मोहम्मद उस्मान अंसारी साहब जो हमारे मुशायरे की सदारत फरमा रहे थे, खुतबा सदारत के साथ माइक पर तशरीफ ला रहे। जरा सा जितने लोग भी हैं, आप सब लोग एक एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं, तालियों की गूंज में आज के मुशायरे के सदर का इस्तकबाल कीजिए जनाब उस्मान अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब और इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत कर रहे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर नाज़िम जनाब नदीम फर्रुख साहब और स्टेज पर विराजमान स्टेज पर सारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात, शायरीन शुअरा किराम, मैं एक शेर उर्दू अदब की हैसियत से, चूँकि उर्दू की महफिल है, एक ज़माना था कि जब मुशायरे हुआ करते थे तो मुशायरों में दाग देहलवी का एक शेर लिखा जाता था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। दोस्तों, मैं भी इस शेरी सफ़र का, जब मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, मैं एक मदरसे में पढ़ाने का काम करता था, तो मैंने भी बहुत शेर लिखे और 2-4 किताबों में भी छपे, और आज अल्लाह का शुक्र है कम से कम 10,000 से ज़्यादा शेर मेरे जहन के अंदर महफूज है। कुल्लियत इक़बाल को मैंने इतना पढ़ा कि उसके अक्सर शेर में ज़बानी याद रखता हूँ। इस शेरी दुनिया से मेरा खासा ताल्लुक़ है। बहरहाल आज की इस खूबसूरत महफिल को सजाने संवारने के लिए जनाब नबील मिकरानी साहब ने जो मेहनत, जो काविश, जो खिदमत नूरपुर और अहले इलाके के लिए अंजाम दी है, उर्दू अदब के लिए ऐसी काविशें होती रहनी चाहिए। मेरी दुआ है कि वो आने वाले वक्त में इससे अच्छी और इससे बेहतरीन कोशिशें करें। इंशाअल्लाह हम उनके साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई 1 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? जो काम अभी जाके करेंगे वो 1 मिनट बाद भी कर सकते हैं। हाँ, तो 1 मिनट रुक जाइए। इजहार तशक्कुर के लिए मैं नबील मिकरानी आज के मुशायरे के कन्वीनर, उनसे गुजारिश करता हूँ कि तमाम सामीन और शोरा किराम का शुक्रिया अदा करने के लिए तशरीफ लाएं। मैं सभी अपने मेहमान लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप अपने नूरपुर के सारे सामाइन का शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने इस अदब की महफिल का आप हिस्सा बने, मैं तमाम उम्र आपका एहसानमंद रहूँगा। शुक्रिया। तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है तुमने, पसीना निकाल दिया। तो ये था नूरपुर का जश्न नूरपुर के उन्वान से मुनक्किद एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, जिसके कन्वीनर थे नौजवान शायर नबील मिकरानी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हिंदुस्तान में सबसे पुराना हमारा चैनल है, ये सबसे पहला हमारा चैनल है जो मुशायरों को फरोख्त करता है। उस ज़माने से जब 250 रुपये 1 GB, 250 रुपये में 1 GB आता था। बहरहाल, मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए खालसा इंटर कॉलेज नूरपुर, ज़िला बिजनौर, यूपी, इंडिया से